lots of traffic, lots of users comes on the daily basis, तो हम multiple services को invoke कर रहे होते हैं. So hello everyone, in today's video we are going to discuss about microservices architecture. So we will see like how microservice architecture works and how like we integrate API gateways with microservices and how like SQS, SNS, these all things work with microservices. So we will discuss each of them in today's video. So let's start. So just take an example. You ordered the food from Zomato, right? When you ordered some food from Zomato, what happened? Lots of things happen at the same time, right? Simultaneous, like for transaction your payment gateway works, right? When you order the we also need to update the inventory, right? And at the same time, like your delivery tracking also works, right? So you have like all these features when you order one food from the Zomato, right? And you use all of them, but these all services works independently. But what you feels, Zomato is a single application, right? But actually these all services work independently, even if you feel this is a single application, right? And this is the magic of microservices. So how microservices works, let's see. So just suppose in our applications, when we use some applications which are like very large in size, which are very heavier, lots of traffic, lots of users comes on the daily basis, then we what we does कि जितने भी फीचर्स होते हैं उस एप्लीकेशंस के, व्हाट वी डज कि सबको इंडिपेंडेंटली हम उसको लाइक डेवलप करते हैं और इसको एज अ माइक्रो सर्विसेज, वी कॉल इट एज अ माइक्रो सर्विसेज एंड वी कीप इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. Let's suppose we have a functionality के inventory is a functionality, authorization it's a functionality, like auth is completely independent functionality of the applications, right? And the payment gateway transaction is a complete different services or function we can say. So notifications is also again a independent service. So what do we do कि हम ये सारे functionalities को independent as a micro service डेवलप करते हैं and we keep it as a independent microservices, right, in our application. And what we does, we make a communication between these all microservices. And how we communicate, how these all microservices communicate, then we have a like REST API, we have a messaging queues, we have a gRPC. So these all things helps us to make these communication between all microservices, right? So let's suppose we have a microservices or payment gateway, right? And other is, let's suppose it's a notification service. Now we have a delivery tracking, right? Now we also can have what other, like inventory is also a independent service, right? Inventory service. So suppose we have these 4 services and these all services just need to communicate to each other, right? They all need to communicate to each other somehow. So what happened, basically these all are independent microservices and all are developed independently. So इसका फायदा, like what the benefit of making or keeping it separate, the main benefit of this is we can deploy these all services independently, we can make the changes, we can change the tech independently for all these services. लेट सपोज हमें नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस करने हैं, लाइक कोई नई फीचर्स आ गए या फिर हमें उसकी यूआई चेंज करनी है या वट एवर वी नीड टू डू विद द नोटिफिकेशन सर्विस, we need not to touch or make any changes in the payment, delivery and inventory services. So this is the main benefit of keeping it as a microservice and just keep it independent to each other. तो अगर लेट सपोज हमें इन्वेंट्री में कोई चेंजेस आया, अब मुझे जो डिप्लॉय करना है, अगर हम इसे इंडिपेंडेंट नहीं रखते, वी कॉल इट एज अ मोनोलिथिक एप्लीकेशंस, जहाँ पे हम ये सारी चीजें एक साथ रखते हैं, सेम जगह पे रखते हैं, उसे हम मोनोलिथिक एप्लीकेशंस कॉल करते हैं. वहां पे ये प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लेट सपोज आपको इन्वेंट्री में कोई चेंजेस करने हैं, उसके लिए आपको पूरे कोड को, लाइक पूरी कोड बेस को वहां पे लाइक सारे सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे.
सबको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन एनी वेयर, देन बिकॉज देर आर टाइटली कपल्ड टू ईच अदर, बिकॉज द एप्लीकेशन इज मोनोलिथिक, वहां पे चीजें बहुत टाइटली कपल्ड होती है। तो आपको चेंजेस करने के लिए सब जगह देखना पड़ता है कि लाइक और कहाँ कहाँ इसका रिफ्लेक्शन है या कहाँ कहाँ पे इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल थिंग्स, राइट। तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती है, और अगर हमें एक जगह चेंजेस करने हैं तो दूसरी जगह भी चेंजेस करने पड़ जाते हैं कई बार। और फिर हमें क्या होता है कि अगर एक को डिप्लॉय करना है तो हमें फिर बाकी पूरी एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करनी पड़ती है। दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स इन द मोनेलिथिक एप्लीकेशन। बट यहाँ पे क्या है कि हम इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, और ये अपने आप में हर एक ईच सर्विसेज यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी को नोटिफाई करता है कि यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है हमारे पास जो नोटिफिकेशन की फंक्शनैलिटी है, उसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सर्विस है। इन्वेंट्री एक अपने आप में फंक्शनैलिटी है, तो इसको हैंडल कर रहा है हमारा एक माइक्रो सर्विस जो हमारा इन्वेंट्री माइक्रो सर्विसेज है, राइट। ऐसी पेमेंट पेमेंट के लिए हमारा एक इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज है जो कि पेमेंट की फंक्शनैलिटी को हैंडल कर रहा होता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो सर्विसेज। एंड नाउ व्हाट इज लाइक एपीआई गेटवे। सो when we use different microservices, when we use microservices, right, what happened actually कि हमारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है। अब वहां पे लेट सपोज क्लाइंट के पास से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, दिस इज अवर क्लाइंट, राइट। नाउ जब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट अभी किस चीज के लिए हो रही है, लाइक आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, या आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप इन्वेंट्री को भी अपडेट करना है, या फिर आप डिलीवरी ट्रैकिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यूजर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो किस चीज की रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब उसको उसके रिलेवेंट माइक्रो सर्विसेज पे फॉरवर्ड करने के लिए कौन से रिक्वेस्ट किस पे जानी है, ये चीज कौन आइडेंटिफाई करता है, ये चीज कौन डिसाइड करता है। तो वी यूज एपीआई गेटवे हेयर। सो वी हैव अ एपीआई गेटवे। ना अभी क्या है कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट पहले एपीआई गेटवे के पास आएगी। अब नो एपीआई गेटवे क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि लेट्स से वी हैव मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, एक पेमेंट की थी, नाउ वी हैव अनदर नोटिफिकेशंस की। नाउ वी हैव वन मोर सर्विसेज, लेट्स सपोज कि ये कोई तीसरी सर्विसेज है, लाइक ईमेलर की है। तो एपीआई गेटवे डिसाइड करता है कि ये जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है वो हमें कौन से सर्विस को भेजना है, लाइक किस चीज का रिक्वेस्ट है ये। और वो एपीआई गेटवे उसको कैसे डिसाइड करता है, तो वो एंड पॉइंट से डिसाइड करता है कि वो एंड पॉइंट किस चीज की है। अकॉर्डिंगली वो उस सर्विस को, लेट सपोज कि अगर हमारा एंड पॉइंट, लेट सपोज कि हमारा एंड पॉइंट अगर एपीआई एंड पेमेंट, तो ऑफ कोर्स ये भेजेगा पेमेंट सर्विस पे। अब ये इसको पेमेंट सर्विस पे भेज देगा। ऐसी अगर वो रिक्वेस्ट, लेट सपोज कि अब जो हमारा दूसरा रिक्वेस्ट आया वो रिक्वेस्ट आई थी नोटिफिकेशंस की, it will send to notifications सर्विस। तो अगर वो रिक्वेस्ट जो है पेमेंट की है तो पेमेंट की सर्विस पे भेजनी है, अगर वो नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन सर्विस पे भेजनी है। सो एपीआई गेटवे इस चीज को मैनेज करता है, ये हैंडल करता है कि ये रिक्वेस्ट जो आई है वो किसके लिए है, किससे रिलेवेंट है, कौन से सर्विसेज को भेजनी है। बिकॉज हम यहाँ पे हमारे पास क्या है कि माइक्रो सर्विसेज है बहुत सारे और वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। तो किसके लिए ये रिक्वेस्ट है, कौन सी सर्विसेज इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है, उस पर रिडायरेक्ट करने के लिए हम एपीआई गेटवे का यूज करते हैं। एंड एपीआई गेटवे यहाँ पे ही हम जो है बहुत सारी चीजें, रेट लिमिटिंग कैसे करनी है, या फिर हमारा सिक्योरिटी, ये सारी चीजों, ये सारे कंसर्न्स को हैंडल करता है एपीआई गेटवे। सो इस तरीके से हम एपीआई गेटवे का यूज करके अपने मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को मैनेज कर रहे होते हैं। नाउ जब आप मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज का यूज कर रहे होते हो तो हमारे पास लेट सपोज बहुत सारी सर्विस है, राइट। नाउ वी हैव मल्टीपल सर्विसेज। Just take an example of any one services. Let's suppose we have a payment gateway, right? ये एक सर्विस है, इसका नाम है पेमेंट। तो जब आप एप्लीकेशन का यूज कर रहे होते हो, तो जब आप पेमेंट करते हो, लेट सपोज आपने फूड ऑर्डर करने की, आपने पिज्जा सेलेक्ट किया,
एंड ऐड टू कार्ट किया एंड देन फिर गो टू द पेमेंट एंड आपने पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही पेमेंट होता है, पेमेंट होने के बाद क्या होता है, हमें लाइक लेट सपोज आपको कंफर्मेशन भेजनी होती है, यूजर्स के एंड पे हमें कंफर्मेशन भेजनी होती है कि पेमेंट हो गया या नहीं हुआ, राइट। तो ये कंफर्मेशन भेजने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं कि हाँ पेमेंट हो गई है, सपोज करो। एंड जस्ट सपोज कि हमें जो है आपको ईमेल भेजनी है, ईमेल पे कंफर्मेशन देनी है या पेमेंट की इनवॉइस भेजनी है कि पेमेंट आपका कंफर्म हो गया, नाउ दिस इज एन ईमेल वेयर यू हैव द इनवॉइस अटैच्ड, राइट। तो ऐसे अगर हमें ईमेल्स भेजनी है, लेट्स सपोज ये हमारा ईमेलर वर्कर है, राइट। ये हमारा ईमेल वर्कर था, ठीक है। अब जब पेमेंट कंफर्म हुआ, पेमेंट की कंफर्मेशन हमने दिया और हमें ईमेल भेजना है। अब ये पेमेंट और ईमेलर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट, कि भाई आप मेरा पेमेंट हो गया, आप जो है इस यूजर को ईमेल भेज दो। तो एक तो ये एक सिंपल एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई लो ईमेल भेज दो, बट देर इज चांसेस कि किसी भी रीजन से समहाउ अगर जब इसने रिक्वेस्ट करी ईमेलर को कि आप ईमेल भेज दो, तब मे बी ईमेलर का सर्वर डाउन हो या फिर ईमेल किसी भी रीजन से वर्क नहीं कर रहा हो और वो ईमेल ना जाए। बट व्हाट यू वांट कि ईमेल भेजना मुझे बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है यहाँ पे ईमेल भेजना, क्योंकि इनवॉइस भेजना ऑफकोर्स बहुत नेसेसरी होता है पेमेंट के बाद, राइट। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम क्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्यू का यूज करते कहते हैं कि यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एक चैनल क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड वन मोर थिंग कि पेमेंट जो है हर सेकंड आपके पास किसी बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं जहाँ हर सेकंड बहुत सारे पेमेंट हो रहे होते हैं, बहुत सारे। तो जब आपके पास पेमेंट हर सेकंड हो रहा है, आप हर सेकंड जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हो ईमेलर को कि भाई मेरा पेमेंट हो गया, आप ईमेल भेज दो, पेमेंट हो गया ईमेल भेज दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लाइक बहुत सारे एपीआई कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सर्वर्स पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ईमेलर इसको हैंडल ना कर पाए, ये भी एक चांसेस है यहाँ पे। तो अगर आपको साइमल्टेनियसली बहुत सारे पेमेंट्स आते हैं तो वो एक बार में आप नहीं भेज सकते सबको ईमेल, राइट, क्योंकि ईमेलर ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टाइम लेगा ईमेल भेजने के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्यू का यूज करते हैं। क्यू में यहाँ क्या करते हैं हम कि जितनी भी पेमेंट आपकी होती जा रही है, अब आपको उस यूजर को ईमेल भेजना है, आप सारे आप इवेंट को, जो भी आपके इवेंट है उस सब इवेंट को आप क्यू में स्टोर करते जाओ कुछ इस तरीके से। एंड नाउ ईमेलर क्या करेगा, हर एक रिक्वेस्ट को यहाँ से पुल करेगा, ईमेल भेजेगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नाउ फिर दूसरे को पुल किया, फिर उसको ईमेल भेजा, फिर डिस्ट्रॉय कर गया, फिर तीसरे को एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से ईमेलर जो ईमेल को पुल करता है, पुल करके यहाँ पे भी पुल और पुश दोनों मैकेनिज्म का यूज होता है। पुल मींस के ईमेलर वर्कर जो है वो खुद इवेंट को पुल करेगा एंड फिर उसको ईमेल सेंड करके फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड पुश के केस में आपको ईमेलर को बोलना पड़ता है कि भाई ये ले, ये मेरी इवेंट है, ये ईमेल कर दे। तो वो ईमेलर वर्कर फिर ईमेल भेजेगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे वो पुल कर रहा है और ईमेल डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब किसी भी रीजन से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फायदा केस का यूज करने का कि अगर आपका ईमेलर उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा था या किसी भी रीजन से अगर ईमेल नहीं गया है, तो वो क्या करता है कि वापस से उस इवेंट को वापस से क्यू में डाल देता है। अब वो क्योंकि वापस से क्यू में आ गया है, तो फिर जब उसका टर्न आएगा तो फिर वो वापस से सेम इवेंट को पुल करेगा और फिर से ईमेल भेजने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है कि हम मेक श्योर कर पाते हैं कि हमारा ईमेल जाएगा ही जाएगा। अगर किसी रीजन से उस टाइम पे नहीं वर्क कर रहा था तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से क्यू में रख लेते हैं। मतलब हम एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे होते, अपने इवेंट को लॉस नहीं कर रहे होते, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते, हम वहां पे क्या कर रहे होते, उसको रिस्टोर कर लेते हैं। इन केस ऑफ के ईमेल अगर नहीं गया है तो हम उसे रिस्टोर करते हैं एंड फिर फर्दर ट्राई करते हैं उसको भेजने का। जब तक वो नहीं जाएगा हम उसको रिस्टोर करते हैं। जब वो ईमेल सेंड सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा देन उसी केस में ये इवेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। अदरवाइज वो बार बार क्यू में रखता जाएगा और उसको फिर से भेजने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे सेफ साइड है यहाँ पे बहुत ज्यादा कि लाइक हम कंफर्म कर पा रहे हैं, श्योरिटी दे पा रहे हैं कि भाई हम ईमेल जाएगा ही जाएगा, जब तक नहीं गया तब तक वो रिट्राई करता ही रहेगा। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं SQS, सिंपल क्यू सिस्टम। दिस इज SQS, सिंपल क्यू सिस्टम। नाउ अब आप बताओ कि लेट्स सपोज कि आपका पेमेंट हो गया, राइट। नाउ जब आप किसी भी प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज फूड ले लो या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लो, जब आप ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर करने के बाद क्या एक ही इवेंट ट्रिगर करना होता है आपको?
एक ही चीज, एक ही लाइक सिर्फ ईमेल भेजना होता है क्या हमें? जस्ट थिंक, नहीं। जब भी पेमेंट होता है किसी भी एप्लीकेशंस पे, तो हमें बहुत सारे सर्विसेज को एक साथ नोटिफाई करना पड़ता है। जैसे सपोज कि हमें ईमेल को ईमेल भी भेजना है, एंड हम क्या करते हैं कि हम एसएमएस भी भेजते हैं अपने यूजर्स को, एंड देन फिर हम जो है अपने सेम टाइम पे जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, दैट मीन्स कि आपने वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है, तो हमें अपने सेम टाइम पे इन्वेंट्री को भी अपडेट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है तो हम मल्टीपल सर्विसेज को इन्वोक कर रहे होते हैं। हम जो है यहाँ पे बहुत सारे किसी भी इवेंट में मल्टीपल सर्विस को इन्वोक कर रहे होते हैं। हम ईमेलर से ईमेल भी भेजना चाहते हैं, सेम टाइम पे हम मैसेज से मैसेज भी भेजना चाहते हैं, सेम टाइम पे हम अपने इन्वेंट्री को भी अपडेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज को इन्वोक करना चाहते हैं सेम टाइम पे, जस्ट काइंड ऑफ कि हम उसे इन्फॉर्म करना होता है कि भाई ये पेमेंट हो गया है, आप लोग देख लो। तो जब हमें एक ही टाइम पे एक ही इवेंट पे बहुत सारे सर्विसेज को इन्वोक करना होता है, तो यहाँ पे जो एसक्यूएस है, सिंपल क्यू सिस्टम, वो एक ही वर्कर के साथ वर्क करती है। लाइक वो एक बार में एक ही सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। वहां पे लेट सपोज यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं ईमेलर भी है और हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी है, लेट सपोज हमारे पास मैसेज वर्कर भी है, राइट। नो इन केस ऑफ एसक्यूएस, अगर हम यहाँ से कोई भी इवेंट हुआ, राइट, पेमेंट हो गया, इट्स अ इवेंट हुआ। अब ये इवेंट से मुझे इस यूजर के लिए, जो ये हमारा स्पेसिफिक इवेंट है, इसके लिए मैं ईमेल भेजना था। अगर उसको ईमेलर वर्कर ने पिक कर लिया, अगर पुल कर लिया है, तो वो कोई और दूसरा वर्कर लाइक मैसेज वर्कर सेम इवेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है, वो एक ही कंज्यूमर एक इवेंट को कंज्यूम कर सकता है, एक से ज्यादा वर्कर एक ही इवेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता। एसक्यूएस के केस में ऐसा होता है। तो सिंपल क्यू सिस्टम जो है एक ही वर्कर्स एक ही इवेंट के लिए वर्क करता है, लेकिन एक मतलब वन ऑन वन चैनल होते हैं, यहाँ पे वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो सकता है, वही पॉसिबल है। तो अगर इसने पुल कर लिया तो ये रीड नहीं कर सकता। अगर एसएमएस वर्कर ने किसी इवेंट को पुल कर लिया और रीड कर लिया है, तो वो अब ईमेलर नहीं कर सकता है। बट व्हाट वी वांट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें बहुत सारे वर्कर्स को एक साथ इन्वोक करना है। तो वैसे केस में क्या होता है, व्हाट वी डू कि हम सिंपली क्या करते हैं, हम एसक्यूएस का यूज ना करके वहां पे हम यूज करते हैं एसएमएस। एसएनएस इज समथिंग सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या करता है बेसिकली कि हमारा जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होता है वो कैसा होता है कि लाइक सपोज ये एक से मल्टीपल वर्कर्स को इन्वोक कर सकता है सेम टाइम पे। हमारा एसएनएस लिया, ये इवेंट ट्रिगर हुआ, हमने एसएनएस को बोला कि भाई एसएनएस ये ले, ये हमारा इवेंट ट्रिगर हो गया। अब तो किस किस वर्कर्स को इन्वोक करना है वो तेरा काम है। तो एसएनएस क्या करता है कि वो सारे वर्कर्स को एक साथ इन्वोक कर सकता है, ईमेलर को भी, मैसेज को भी, एंड लाइक सपोज कोई और वर्कर्स है हमारा नोटिफिकेशंस या फिर कोई और वर्कर्स है नोटिफिकेशन, तो इन सारे वर्कर्स को एक साथ इन्वोक कर सकता है और बता सकता है कि लाइक भाई हमारा पेमेंट हो गया। अब ईमेलर का काम है ईमेल भेजना, मैसेजर का काम है मैसेज भेजना, नोटिफिकेशन का काम है नोटिफिकेशन भेजना। तो ये सारे को एक साथ इन्वोक कर दिया, अब वो लोग अपना मैसेज भेज देंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमें लाइक किसी भी इवेंट पर अगर मल्टीपल वर्कर्स को इन्वोक करना है तो हम एसएनएस का यूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि लेट सपोज एसएनएस ने इन्वोक तो कर दिया, बट यहाँ पे कोई एक्नोलेजमेंट नहीं होता है कि अगर एसएनएस ने इन्वोक किया ईमेलर को कि भाई ईमेलर को ईमेल भेजने के लिए, राइट, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया ईमेल भेज दे, या अनसक्सेसफुल हुआ ईमेल भेज दे। तो ईमेलर जो ईमेल भेजा या ना भेजा, वो कंफर्मेशन, वो एक्नोलेजमेंट वापस से नहीं आता। और ना वो अगर अनसक्सेसफुल के केस में ईमेल अगर नहीं गया किसी भी रीजन से, तो अनसक्सेसफुल होने के केस में वो वापस से उसको क्यू में भी नहीं डालता, उसको रिस्टोर भी नहीं करता। तो हमें एक्नोलेजमेंट कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है एसएनएस में। और एचक्यूएस में क्या प्रॉब्लम्स थी कि वो सिंगल कम्युनिकेशन था, वहां पे वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो पा रहा था। कंज्यूमर जो है वो एक इवेंट को एक ही कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता, मल्टीपल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे हमें एक ही इवेंट पे मल्टीपल वर्कर्स को इन्वोक करना है, अब बट उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही है। तो हम जो है क्या करते हैं, हम बेसिकली एसएनएस के ऊपर एसक्यूएस का यूज करते हैं। हाउ वी डू दैट, लेट मी इरेज दिस।
let me read this. Okay, so how it works ना, अभी क्या होगा जब पेमेंट हुआ, लेट सपोज यहाँ पे एसएनएस था, अब हम एसएनएस के ऊपर जितने वर्कर्स होते हैं, लाइक ईमेल है, लाइक मैसेज है या नोटिफिकेशन है, कोई भी वर्कर्स इन्वोक करे, लाइक मल्टीपल वर्कर्स को एसएनएस ने इन्वोक किया, राइट। तो हम यहाँ एसएनएस की बात क्या करते हैं, हम एसएनएस के ऊपर यहाँ पे क्यू सिस्टम का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्यू लगाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि और ये क्यू जो है ये सब के सब आपस में एक एसक्यूएस है, सिंपल क्यू सिस्टम। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब भी पेमेंट हुआ, राइट, एसएनएस सिस्टम सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या करेगा कि वो मल्टीपल वर्कर्स को इन्वोक कर देगा, मतलब एक बार में सारे वर्कर्स को बता देगा कि भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम एसएनएस के ऊपर एसक्यूएस लगा दिया, सिंपल क्यू सिस्टम। अब जब हर एक वर्कर्स के पास नोटिफिकेशन आ गया कि भाई हो गया, अब ही क्या होगा, ईमेलर के पास भी जाएगा और ईमेलर के पास जाने से पहले यहाँ पे एसक्यूएस लगा हुआ है। तो अब एसएनएस और ईमेलर जो के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एसक्यूएस के थ्रू हो रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मल्टीपल वर्कर्स इन्वोक भी हो गए वाया एसएनएस। अब वाया एसक्यूएस जो है वो हर एक की एक्नोलेजमेंट भी हमें मिल सकती है, और इन केस ऑफ फेल्योर वो वापस से उसको पुल भी करके रिस्टोर भी करेगा क्यू में, बिकॉज एसक्यूएस का वर्क यही है कि वो भाई एक्नोलेज करता है, अगर फेल्योर्स आए, सक्सेसफुल आए तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, अगर अनसक्सेसफुल वो वापस से क्यू में डाल देगा और उसको वापस से भेजने का ट्राई करेगा। तो एसक्यूएस को हम एसएनएस के ऊपर लगाते हैं और फिर यहां से क्या हुआ, हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो this way we handle these things. Okay, so I think we covered all the things like how API gateway works and how microservices work, what the benefit of it, and how SQS and SNS works on the microservices, right? So I hope you enjoyed this video and thanks for watching. Bye bye.